بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور پرکیف ساعات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ دعا ہے، فقیرانہ التجا ہے کہ وہ ماہ مقدس کی برکات اور سعادات سے تمام صاحبان ایمان کو مستنیر اور مستفید فرمائے۔ ہمارے اعمال پر، ہمارے افعال پر، ہماری عبادات پر، ہماری سجدہ ریزیوں پر، ہماری نوافل و ریاضت پر ہماری کیفیات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان رحمت کے موافق ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں ہمیں اپنی خوشنودی، اپنی رضا اور اپنی بخشش اور اپنی مغفرت عطا فرمائے۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، افطاری کے قبولیت کے لمحات میں اور ساعات میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکار جمیل کے ذریعے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ فقیر استغاثہ پیش کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کی صدا لگا رہا ہے۔ امید پر نہیں بلکہ یقین پر کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا توسل، آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اور محبوب کا استغاثہ اور محبوب کا توسل اور محبوب سے وسیلہ بہر صورت اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، آپ سے تعلق ہی ہمارا سب سے بڑا مان ہے اور سب سے بڑا افتخار ہے۔ نہ ہمیں اپنی عبادات کا مان ہے، نہ ہمیں اپنے زہد و تقوی کا مان ہے، نہ ہمیں اپنی پرہیزگاری اور خشیت کا مان ہے۔ ہمیں مان ہے تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق کا مان ہے، اور ہم یہ اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ بری تعالی خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ بری تعالی ہمارے دامان زیست میں، ہمارے کشکول حیات میں کچھ نہیں ہے مگر تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت غلامی ہے، تعلق غلامی ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے، اس تعلق کا بھرم رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ کر لے، اور ہمیں آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمانا، ہماری قبر کی ظلمتیں بھی دور کر دینا، اور ہماری حشر کی تنہائی اور وحشت کو بھی دور کر دینا۔ مولا کریم، ہمارے پاس کچھ نہیں، تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دامان رحمت ہے۔ بس اسی لیے میں نے اس سال یہ نیت اور ارادہ کیا کہ ہر روز وقت افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے خود بھی
اور آپ کو بھی کشکول فقیرانہ لیے ہوئے دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا کر دوں گا، اس لیے کہ وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدجم، کہ کاشانہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پر صرف پرندے تو کھڑے نظر نہیں آتے، صرف جانور تو صدائیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، صرف جنات تو آوازیں لگاتے نظر نہیں آتے، صرف انسان اور فرشتے تو دامان زیست کو پھیلائے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بھی بارگاہ رسالت میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ وَكُلُّ آیِّنَّتَ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہمی، کہ جس نبی کو جو شان ملی ہے، جس نبی کو جو عزت ملی ہے، جس نبی کو جو کرامت ملی ہے، وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملی ہے۔ پروردگار عالم کی ساری نعمتیں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اترتا ہے اور وہاں سے پھر کائنات کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی زبان انور سے، اپنی لسان اقدس سے خود ارشاد فرمایا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں اور عطا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اس کائنات میں عطا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس طرح اس کائنات میں اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے والی صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ادھر سے ہر لمحہ عطا ہو رہی ہے، ادھر سے ہر لمحہ تقسیم ہو رہی ہے، ادھر سے سب کچھ عطا ہو رہا ہے، ادھر سے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر مشاہدہ کیا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر کوئی اپنا دامن پھیلائے اور میرے آقا اس دامن کو خالی لوٹا دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی لا یعنی نہیں کا کلمہ نہیں سنا۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ایک لفظ سے نہیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دنیا کو تیرے در سے، بس ایک لفظ سے نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ بس میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر افطار کے ان مقبولیت سے لبریز لمحات میں دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا ہوتا ہوں اور اس یقین پر کھڑا ہوتا ہوں کہ کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے گو مجرم بدکار بڑے ہیں، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ جس طرح میرے آقا نے سیدنا ربیہ بن کعب جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی حاضری بجا لاتے تھے، میرے آقا جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، وضو کا اہتمام سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، میرے آقا نے ملاحظہ کیا کہ ربیہ بن کعب خدمت بجا لانے میں، میری نوکری اور چاکری کرنے میں کبھی گریز نہیں کرتا، ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے، ہر وقت چست رہتا ہے، ہر وقت محبت بھرے لبحات سے لبریز رہتا ہے۔ ایک دن درجائے رحمت جوش پہ آیا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل ربیہ ابن کعب، اے ربیہ ایک عرصہ ہو گیا ہے تم میری خدمت بجاتے رہے ہو، مجھے پانی پیش کرتے ہو، مجھے وضو کرواتے ہو، مانگو کچھ مانگ لو، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔
सैयदना रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी नौकरी मुयस्सर है, आपकी चाकरी मुयस्सर है, आपकी दहलीज कुद्स पर बैठना मुयस्सर है, आपकी खिदमत में हाज़री मुयस्सर है। इससे बड़ी नेमत ही क्या है कि जो मैं मांगूं, इससे बड़ी फजल ही क्या है जो मैं तलब करूं। मगर ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि रबिया बिन काब, कुछ मांग लो, मैं अता करना चाहता हूँ। कुर्बान जाएं रबिया बिन काब की फिक्र के, रबिया बिन काब की सोच के, रबिया बिन काब के ख्याल के, मांगा और मांगने का हक अदा कर दिया। अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, मेरे आका आप अता फरमाना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। फिर आप मुझे ये अता फरमा दे कि जैसे दुनिया में आपकी नौकरी करता हूँ, जन्नत में भी आपकी नौकरी मुयस्सर आ जाए। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत नहीं मांगी, कहा इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, मेरे आका मैं आपकी संगत मांगता हूँ जन्नत में। रबिया बिन काब ने जन्नत में संगत नहीं मांगी, संगत वाली जन्नत मांगी है। यही तो वजह है कि एक दिन मेरे आका के गुलाम जिनका नाम सैयदना सौबान था, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। तभी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सौबान का रंग जर्द हुआ है, सौबान कमजोर भी हो चुके हैं। अर्ज फरमाया कि सौबान तुझे क्या हो गया है? मैं देखता हूं कि तू नहीफ व नातवा हो गया है, कमजोर हो गया है। और सैयदना सौबान ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे और मेरे आका के बगैर एक पल जी नहीं सकते थे। फिर कोई ऐसा अमर लाहिक हो गया, फिर कोई ऐसी जिंदगी में मुश्किल आ गई कि चंद दिन बीत गए, बारगाह रिसालत की हाज़री नसीब नहीं हुई। सौबान अंदर ही अंदर घुलने लगे, इस गम में बुखार आने लगा, जंग पीला पड़ गया, जिस्म कमजोर हो गया। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौबान तुझे क्या हुआ है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद दिन जो आपका दीदार नसीब नहीं हुआ, चंद दिन जो आपकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई, चंद दिन जो आपकी बारगाह में हाज़री नसीब नहीं हुई, ये उसकी वजह है। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौबान अब तो मेरी बारगाह में हाजिर हो, अब तो मुझे देख रहे हो, अब तो मेरा दीदार और ज़ियारत कर रहे हो। इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि तुम ज़ारों की तार रो रहे हो, तुम्हारे बदन पर कपकपी और लर्जा तारी है, तुम्हारी आंखों से अश्कों की बरसात जारी है। अब परेशानी की वजह क्या है? अर्ज की, मेरे आका मुझे एक गम रुला रहा है, मुझे एक सोच इस रिक्कत के अंदर मुब्तला कर रही है। मेरे आका ने फरमाया कि सौबान क्या सोच रहे हो, क्या फिक्र दामनगीर हो गई है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके बगैर एक पल नहीं गुजरता, आपके बगैर एक साथ नहीं गुजरती, आपके बगैर एक लम्हा नहीं गुजरता। जो चंद दिन फुरकत नसीब रही, जो चंद दिन हिजर की आग में जलता रहा, आप देख रहे हैं कि मेरा रंग बदल चुका है, मैं कमजोर और नातवा हो चुका हूँ। मुझे ये सोच आई और इस सोच ने बेकरार कर दिया। मेरे आका आपने भी दाई अजल को लब्बैक कहना है और एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना है और अपने खालिक हकीकी की बारगाह में जाना है। आपको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा और जन्नत और फिरदौस में सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे बड़ा मर्तबा अता करेगा। या रसूल अल्लाह, आपके सदका से मुझे भी जन्नत नसीब हो जाएगी, मगर जन्नत में मेरा दर्जा आपके दर्जे से बहुत दूर होगा, जन्नत में मेरा मकाम आपके मकाम से बहुत दूर होगा।
जन्नत में मेरी मंजिल आपकी मंजिल से बहुत दूर होगी। मेरे आका, मुझे ये गम खाए जा रहा है कि अगर जन्नत में आपका दीदार नसीब ना हुआ तो सौभान क्या करेगा। जन्नत में अगर आका की जियारत नसीब ना हुई तो मैं क्या करूँगा। मेरे आका, मेरे लिए तो वो जन्नत जन्नत नहीं होगी जिस जन्नत में आपका दीदार नसीब ना हो। रब्बे जुल जलाल ने मुलाहजा किया कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में एक आशिक़-ए-ज़ार अपने इश्क व मोहब्बत की दास्तान कह रहा है, अपने दिल का इज़्तिराब बयान कर रहा है, अपनी रूह का इल्तिहाब बयान कर रहा है, अपने जिगर की कसक बयान कर रहा है, अपने फिक्र की परागंदगी बयान कर रहा है। जिब्राईल अमीन को भेजा, कहा जिब्राईल अमीन जाओ मेरे महबूब के गुलाम को तसल्ली दे आओ और उसे कहो मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जिब्राईल अमीन आए, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान तिलावत किया। मेरे आका ने सौबान को बशारत दी। सौबान से कहा खुश हो जाओ, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे दुख का मदावा कर दिया है, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे दर्द का इलाज कर दिया है। अल्लाह ताला ने ये फरमान जारी कर दिया है कि जन्नत में तुम्हें मेरी संगत नसीब हो जाएगी। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आया करीमा का शान नज़ूर यही है। हजरत सौबान की तड़प है, हजरत सौबान की कसक है, हजरत सौबान की जलन है, हजरत सौबान का रोना है, हजरत सौबान की आहुजारी है। और मुफस्सिरून किराम ने लिखा कि जन्नत के अंदर यूं तो होगा कि ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बड़ा बुलंद होगा, आपकी शान बड़ी बुलंद होगी, आपका मर्तबा बड़ा बुलंद होगा, मगर रब्बे जुल जलाल ये एहतिमाम फरमा देगा कि मेरे आका के आशिक, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले मकाम और मंजिल में दूर तो होंगे, मगर जिस जगह पर होंगे वहां से मेरे आका के जलवों को समेट रहे होंगे, रुखे वद्दुहा का नजारा कर रहे होंगे, जुल्फे वल्लैल का दीदार कर रहे होंगे, चेहरे व शम्स की खैरात लूट रहे होंगे। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना ये हुआ दोस्तों, जन्नत तो सारी ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से लबरेज होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वह जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, जन्नत की चौड़ाई इतनी है जितना जमीन व आसमान की लंबाई है। तो वो जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान की लंबाई जितनी है, उसकी लंबाई का आलम क्या होगा। और ये आया करीमा बतलाती है कि जन्नत के हर जर्रे पर, जन्नत के हर मर्तबा पर मेरे आका के दीदार के जलवे होंगे। सारी जन्नत के ऊपर ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानाइयाँ होंगी, ज़ेबाइयाँ होगी। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवरात जन्नत के हर महल पर चमक रहे होंगे, जन्नत के हर गुंचे पर चटक रहे होंगे। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जन्नत के हर दरीचे से मुनकशिफ हो रहा होगा। तो हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली आ गई कि हमें जन्नत में मेरे आका का दीदार नसीब हो जाएगा, आका की जियारत नसीब हो जाएगी। दोस्तों और साहिबों, जिसने जलवाए महबूब को देखा है, जिसने ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर की जियारत की है, उसकी निगाहों में फिर इससे बड़ी कोई नेमत नहीं रही। वो इसी नेमत के लिए तड़पता रहा। आपने सुना है ना कि वादी हमरा में पीर मेहर अली शाह साहिब गए थे, थके हुए थे, सफर पर जा रहे थे, हज पर जा रहे थे, थके मांदे इशा की नमाज जल्दी से अदा की और कहा कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इनका पढ़ना जरूरी तो नहीं, पढ़ ले तो सवाब होता है, ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं होता। थके हुए थे, सामान रखा, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सो गए। इधर सोए थे कि मेरे आका की जियारत नसीब हुई। और पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि आका के रुखे अनवर को नहीं देखा,
आका के चेहरे नूर को नहीं देखा, आका की मुकद्दस पिंडलियों पर मेरी नजर पड़ी। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सामने खड़े हैं, मेरी नजर चेहरे पर नहीं गई, पिंडलियों पर रही। और मेरे आका फरमाते हैं, शाह जी जे तुसी सुन्नता छोड़ोगे तो फिर सुन्नता कौन पड़ेगा। बस वो मेरे आका की पिंडलियों का एक नजारा पीर मेहर अली शाह साहब ने किया, और फिर सारी जिंदगी पता है क्या कहते रहे पीर मेहर अली शाह साहिब, फिर सारी जिंदगी ये कहते रहे कि आज सिख मित्रा दी वधेरी है। बस मित्रों को देख लिया था ना, फिर मित्रों की सिख ऐसी दिल में आई कि वो सिख जई नहीं, उसी सिख में इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी ये कहते रहे कि आज सिख मित्रा दी वधेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये, लू लूह विच शौक चंगेरी ये, अज नैना ने लाइया क्यों झड़ियां। फिर जिंदगी भर नैनू से बरसात जारी रही, और जिंदगी भर ये अर्ज करते रहे, लाहो मुख्ती मुखत्तत बुरदे यमन, मन भावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओह मिठियां गालियां लाओ मिठन, जड़िया हमरा वादी सन करिया। मेरे आका का ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने दीदार कर लिया है, फिर कायनात की किसी नेमत का उसे एहसास नहीं रहा। वो मौलाना गुलाम रसूल ने खूब फरमाया है, आप फरमाते हैं कि ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एक दास्तान मोहब्बत है। एक दिन मैं अर्ज करूंगा मगर उसका एक शेर अर्ज कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि जुलेखा उस नू जे वेख लहंदी, जुलेखा उस नू जे वेख लहंदी, ते ना ओ पिछे यूसुफ शामी दे पैदी। जिसने मेरे महबूब का एक जलवा देखा है, उसकी निगाहों में फिर कोई जलवा नहीं समाया। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का आलम थामे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपसे ताआवुन चाहता हूँ। और ताआवुन ये है कि ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बरसने वाली ये आंखें हर तरफ फैला दो। आका ही दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में कोई नेमत नहीं। आप नेमत कुबरा है, आप नेमत उस्मा है। वो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ही फरमाते हैं, एक दिन नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक आराबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, क़यामत कब आएगी। मेरे आका ने फरमाया, मा आदत्ता लहा, क़यामत का पूछने वाले क़यामत की तैयारी क्या की है। गोया उसलूब हकीम के तहत बड़ी देनाई से उसे छिड़का नहीं, उसे डांटा नहीं कि तू गलत सवाल कर रहा है। उसकी फिक्र का रुख मोड़ दिया कि तुम्हें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क़यामत कब आएगी, तुझे फिक्र ये होनी चाहिए कि क़यामत के लिए तूने तैयार क्या किया है। वो आराबी आखिर नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता था। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह लैसली कसीर मिन सलातिन व ज़कातिन व सौमिन, मेरे आका मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं, मेरे पास ज्यादा रोजे तो नहीं, मेरे पास ज्यादा सदका तो नहीं, मगर इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं या रसूल अल्लाह आपसे और आपके मौला से मोहब्बत करता हूं। साहिबो वो सहाबी थे, क्या ये तसव्वुर हो सकता है कि वो नमाज कज़ा कर देते? क्या आप ये सोच सकते हो कि उनके रोजे रह जाते हो? क्या आप ये सोच सकते हो कि वो ज़कात अदा न करते हो? नहीं, नमाजी भी थे, रोज़ादार भी थे, ज़कात और सदकात करने वाले भी थे। हमें पैगाम दे रहे हैं कि नमाजियों और नमाजों पर मान ना करना, रोज़ादारों रोज़ों पर मान ना करना, सखावत करने वालों सखावत पर मान ना करना। मान करने वाली बस एक चीज है और वो मोहब्बत रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज की, मेरे आका
इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर ऐसी बशारत दे दी। उस बशारत को सुन लेने के बाद दुनिया की मोहब्बतों में गर्क होने वालों, अपने ईमान का जायजा ले लो। मेरे आका ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, ए अराबी सुन ले, आदमी उसी के साथ होगा क़यामत के दिन जिससे वो मोहब्बत करता है। जिससे वो मोहब्बत करता है उसी के साथ क़यामत के दिन होगा। अब हमें अपने दिल को टटोलना होगा, हमें अपने जहन को तजस्सुस करना होगा कि हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है, हमारा चेहरा किस जैसा है, हमारा लिबास किस जैसा है, हमारा चाल चलन किस जैसा है, हमारे उसलूब हयात किस जैसे हैं, हमारा तरीक़े ज़िंदगी किस जैसा है। इसलिए कि ये कहने की बात नहीं, जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसी के रूप को अपनाता है, उसी के लिबास को अपनाता है, उसी की तर्ज़ हयात को अपनाता है, उसी के लहजे को अपनाता है, उसी के उसलूब को अपनाता है, उसी के पैराया को अपनाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये तमद्दुन में ये नसारा है, तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत सच्ची है तो इस मोहब्बत का नूर हमारी ज़िंदगी के हर गोशे में नजर आना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस आराबी से फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। व अंत मअ मन अहबब्ता, और तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये दिन हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था, इससे बड़ी हमें बशारत कभी नहीं मिली। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बशारत थी कि हमें मरने के बाद जन्नत भी मिलने वाली है, जन्नत में मेरे आका की संगत भी मिलने वाली है। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस गुलाम रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इन्नी अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, मेरे आका अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे दुनिया में आपकी नौकरी मुयस्सर है, आखिरत में भी आपकी नौकरी मुयस्सर आ जाए, अपनी रफाकत अता कर दे जन्नत में। मेरे आका ने फरमाया आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक, रबिया बिन काब तुझे जन्नत भी अता कर दी, जन्नत की संगत भी अता कर दी, कुछ और भी मांग लो। रबिया बिन काब ने शायर की ज़बान में हाथ जोड़कर किया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अर्ज की हो वज़ा का या रसूल अल्लाह, मेरे आका ये मेरे लिए काफ़ी है, इसके लिए इसके सिवा मैं और क्या मांगूं। तो ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाइन्नी बिकसरति सुजूद, तो फिर अपनी इस इल्तिजा को पूरा करने में मेरी मदद करो। और मदद कैसे करो? कसरत से सजदे किया करो। यानी ज़बानी दावों से मोहब्बत नहीं पूरी होती, ज़बानी नारों से मोहब्बत का दावा पूरा नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया सजदों की कसरत किया करो। मोहब्बत का दावा करने वालों, देखना क्या तुम्हारी पेशानियां बाकायदगी से अल्लाह के हजूर झुकती हैं? क्या तुम्हारी सीरत में और सूरत में मेरे महबूब के जलवे दमकते हैं? इसलिए कि मोहब्बत करने वाला महबूब का मोती और फर्मा बरदार होता है। सैयदा राबिया बिसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवा फरमाती हैं तासिल इलाहा व अंत तज़हुरु हुब्बहू हाज़ा लअमरी फिल क़ियास बदियू लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहू इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतियू। आप फरमाती है मोहब्बत का दावा भी करता है, महबूब की मुखालफत भी करता है। फरमाती है ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर तू मोहब्बत में सच्चा होता तो महबूब का फर्मा बरदार भी होता, इसलिए कि मुहिब महबूब का फर्मा बरदार होता है। साहिबो वक्त है, अभी ज़िंदगी है, अभी हमारे पास मोहलत है, अभी बदल लो, अपनी वसा को बदल लो, अपने लिबास को बदल लो, अपनी ज़िंदगी के तरीक़ को बदल लो। ये घाटे का सौदा नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल की, आपके अक़वाल की,
آپ کے افعال کی پیروی میں، آپ کی سنت کے نور میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا سیکھ لو، آپ کی یاد میں تڑپنا سیکھ لو، آپ کے اطوار اپنا لو، آپ کا اسلوب اپنا لو، آپ کی زندگی کا چال چلن اپنا لو، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی راتوں میں، اپنے دنوں میں، اپنی صبحوں میں، اپنی شاموں میں آپ پر نظر پڑے تو دور سے نظر پڑے تو پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کو انتظار کرنا پڑے کہ میں اسے سلام دوں یا سلام نہ دوں، پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ اپنی ساری زندگی پر اسلام کو طاری کر لو۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کائنات کی کوئی سوغات نہیں ہے۔ اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ موضوع میرا کچھ اور ہوتا ہے، چلا میں کسی اور سمت جاتا ہوں۔ میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے سننے والوں مجھے معاف کرنا۔ میں نے اپنے سامنے جو موضوع تیار کر رکھا تھا وہ میرے آقا کے منہ مبارک تھے۔ آقا کے منہ مبارک پر میں ایک حدیث روایت کر دیتا ہوں۔ بخاری، مسلم اور مشکات شریف میں یہ روایت درج ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے غلام جنہوں نے 10 سال میرے آقا کی خدمت میں گزارے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 ذوالحجہ کا دن تھا۔ میرے آقا مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ جمرات پر کنکر مارنے کے لیے گئے، پھر آپ نے آ کر قربانی کی۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے باربر کو، ہیئر ڈریسر کو بلایا، ثم دعا بالحلاق، پھر ہیئر ڈریسر کو بلایا، وناول الحالق شقہ الایمن، تو سب سے پہلے بال کاٹنے والے نے آپ کی دائیں جانب کے بال کاٹے۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے جب دائیں طرف کے بال کٹے تو آپ نے وہ بال حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرما دیے۔ پھر آپ کی بائیں جانب کے بال کٹے تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی ابو طلحہ انصاری کو عطا کر دیے، اور فرمایا کیا؟ فرمایا اقسم ہو بین الناس، میرے ان بالوں کو میرے چاہنے والوں میں تقسیم کر دو۔ یہ بال صحابہ کرام میں تقسیم ہوتے تھے۔ صحابہ کرام ان بالوں کو اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی پر پھر بات ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی زلفیں اگر بکھر جائیں احتراماً سحر نہیں ہوتی۔ 4 دن ہو گئے ہیں آقا کے منہ مبارک کی بات کرتے ہوئے، پتہ نہیں کب تک چلے گی۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف، روز وصلش جو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین۔ باری تعالیٰ، یہ تیرے محبوب کے خد و خال کا ذکر کر کے، فضل و کمال کا ذکر کر کے، حسن و جمال کا ذکر کر کے اس فقیر نے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا ہے۔ میرے مولا، ہمارے روزے تو اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، ہماری عبادات بھی اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، مگر تیرے محبوب کا ذکر تو اس لائق ہے نا کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے۔ اپنے محبوب کے ذکر پاک کے صدقہ سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، ہماری لغزشوں سے عفو پھیر دے۔ باری تعالیٰ، جو اہل ایمان، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہماری امہات، ہماری جدات، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے دوست و احباب، ہمارے پڑوسی، اہل ایمان جو اس دار فانی میں نہیں ہیں، ان سب کو بخش دے۔ ہر صاحب ایمان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، ہر صاحب ایمان کی قبر پر عبدالآباد تک رحمتوں کا نزول فرما، ہر صاحب ایمان کی قبر کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور سے لبریز فرما۔ یا الہ العالمین، جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، ہر بیمار مسلمان کو شفا عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب بیمار ہیں،
हमें ज़ाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारियों से महफूज कर दे। मेरे मौला हमें हसद की बीमारी है, मेरे मौला हमें बुग़्ज़ की बीमारी है, हमें अदावत की बीमारी है, हमारे अंदर कीने की बीमारी है। इन बीमारियों को दूर कर दे, हमें नफासत अता कर दे, हमें बदन की निफासत अता कर दे, हमें सोचों की निजाफत अता कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी निगाहों को पाक कर दे, हमारी सोचों को पाक कर दे, हमारी फिक्र को पाक कर दे। मेरे मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो दुखी हैं उनके दुखों को काफूर कर दे, जो औलाद की वजह से परेशान है उनकी औलाद को नेक साले और फरमा बरदार फरमा दे, जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा दे, जो बहनें अपने भाइयों के लिए परेशान हैं, जो खामद अपनी बीवियों से परेशान हैं, जो बीवियां अपने खामदों से परेशान हैं। मेरे मौला अपने महबूब के हर उम्मती के घर को अमन से भर दे, सकून से भर दे, इत्मीनान से भर दे, हर तरफ अमन व आश्ती का बसेरा कर दे। अपने महबूब के हर उम्मती के घर को जन्नत और बहिश्त बना दे। बरी ताला जो कश्मीर और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं उनकी मद्द व नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ भी अहले ईमान दुख, दर्द और गम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी गैबी मद्द व नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ मुजाहिदीन इस्लाम हुर्रियत व आज़ादी की जंग कर रहे हैं उनको आज़ाद कर दे। मेरे मौला मेरे साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। तू उठे हुए हाथों के पीछे छुपी हुई तमन्नाओं को जानता है। कोई हाथ खाली न जाने पाए, तुझे तेरे हबीब के रुख और रुखसार का वास्ता है। मौला करीम इन उठाए हुए हाथों को लबरेज कर दे, इन फैलाए हुए दामनों को लबरेज कर दे। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता। वो मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे, सखिया झोली भी दे खैर भी कराता, आया मंगन गदार खुदा वास्ते। हमारे पास झोली भी नहीं, हमारे पास दामन भी नहीं, हमें तो मांगना भी नहीं आता। मेरे मौला तू जानता है जो हमारे लिए बेहतर है, हमें अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, साहिबान ईमान की खैर फरमा, बिलाद इस्लामिया की खैर फरमा। अहले ईमान को ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की और खुशहाली नसीब फरमा। साहिबान ईमान को कामयाबियाँ, कामरानियाँ, सरफराजियाँ, शादाबियाँ अता फरमा। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को इज्जत व विकार वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ईमान वाली ज़िंदगी, शान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। हम सबको मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब फरमा और अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा नूर की ज़ियारत नसीब फरमा। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदा रख, आपकी ग़ुलामी में मौत अता फरमा। हम सो जाएं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिकल मुस्तफ़ा व अंता ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा हस्सिल मक़ासिदना फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या रब्बि जमअन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमतिन या मुब्दिअन निसमी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही व मालिक मुल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहबाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साहिबो, अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करना, एक सेकंड भी रोज़ा पहले इफ्तार न करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रोज़ा इफ्तार करके उसके बाद ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमाए और मेरे इस मिशन हिजरे मुस्तफ़ा को दुनिया के हर साहिब ईमान तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। मेरी ज़िंदगी मेरे आका के लिए है। मैं इस दर्द को, मेरे आका के गम में जलने को पूरी दुनिया में तकसीम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर दिल मेरे आका की मोहब्बत से लबरेज हो जाए, हर आँख मेरे आका के हिजर में तर हो जाए, हर कर्म हो जाए, किसके तसद्दुक़ से सब पर कर्म हो जाए।
اس لیے اس دعوت کو عام کر دو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، دوستوں احباب کو بتاؤ کہ افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے میرے آقا کے رخ و رخسار کا تذکرہ ہوتا ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار جمیل ہوتے ہیں، اور یہ بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، کل 8 بجے انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔